होकर नारे लगाना, मास्क हटाकर कोविड का अनुपालन न करना, ये आप खुद तय करिए कैसा है। महेश पोद्दार जी। Thank you, sir. Sir, through you, I want to know from the Honorable Minister कि इस देश में करीब 100 स्मार्ट सिटी की योजनाएं चल रही हैं और ये बहुत अच्छा कदम है सर, लेकिन मुझे दुख होता हुआ उनको बताते हुए कि स्मार्ट सिटीज में भी वाटर ड्रेनेज की समस्या को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। मैं जानता हूं कि ये लोकल स्तर पर निर्णय लेने हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी जब केंद्रीय योजना है तो महोदय मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि क्या उसमें वाटर ड्रेनेज की कंपोनेंट को कंपलसरी क्यों नहीं किया जा रहा है। Smart City contest, when it was organized in 2015, and according to which 100 smart cities were declared between January 2016 and 2018, they were based on projects which were identified by the states themselves. It was a system of election and competition. Now the states have to determine which projects to take up. Insofar as the central government is concerned, we are always willing to support them, and if there is an issue which requires to be addressed, every state smart city has a special purpose vehicle, it has a special management, they should address this. But again, the projects which have to be taken up under the smart cities project are projects which the state itself determines at the initial commencement of the plan. But as I said, I'm always happy to sit with my colleague, the honourable member, or for that matter any other honourable member, to discuss this issue. Thank you. Question number 97, Dr. Amar Patnaik. Question number 97. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री So the domestic workers have been treated on par with construction workers in the new labor codes. While this could be a good idea to have all labor force covered under one particular code or a smaller number of 4 codes, domestic workers per se cannot be treated as construction workers as they have different sets of problems. Will the government consider at some point to treat them separately under a separate legislative framework that lays down conditions of work besides a minimum guaranteed wage, just like the NREGS scheme, and the social security measures very different from the construction workers? जो नए 4 कोड बने हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में घरेलू कामगार जो है उनको वेज वर्कर की श्रेणी में रखा गया। वेज वर्कर की श्रेणी में चाहे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा चाहे सीधे जो जिनको भी नियोजित किया जाता है उनको वेज वर्कर की श्रेणी में रखा जाता है। और जो नई संहिताएं लाए हैं उसमें हमने स्त्री और पुरुष, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर में काफ़ी ज़्यादा महिलाएँ हैं, सबके समान वेतन की ही व्यवस्था की है। सेकंड सर, इसमें जो आंसर है सर उसमें है कि 39 लाख वर्कर्स NSSO सर्वे में जो एस्टिमेटेड है उसमें 26 लाख महिलाएं हैं। तो महिलाओं के जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत डिफरेंट है, विच कुड डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए पर्टिकुलरली अब्यूज एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो मात्रा है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो उसके लिए क्या प्रावधान आप कर रहे हैं या सेपरेटली कुछ रूल्स में रखेंगे? जहाँ तक डोमेस्टिक वर्कर्स का संबंध है वो इनकी एक विशेष कार्य करने का उनका एक कार्यस्थल और उनकी एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जरूरत है। हमारी सरकार ने पहली बार आज़ादी के बाद जो डोमेस्टिक वर्क है उनके लिए एक व्यापक सर्वे को तय किया और हम व्यापक सर्वे करके उनकी स्थितियों, समस्या और विषयों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं।
सदस्य महल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 100 श्री भट्टाचार्य जी, श्री भट्टाचार्य जी। उत्तर सदन के पटल पर। सुजीत कुमार, सुजीत कुमार। Sir, as per a report published by Ministry of Agriculture in 2019, titled Agriculture the Wages India of 2018-19, there is significant wage difference between males and female labor force. For example, as per this report, the average daily wage of male labor is 320 rupees and female labor is only 262 rupees. So my question from Honorable Minister is, what steps has the government taken or is intending to take to eliminate this wage disparity? हमने जो श्रम की नई 4 संहिताएं लागू करी है, उसमें जो हमने वेजेस कोड लागू किया है, उसमें पूरी तरीके से प्रावधान किया गया है कि पुरुष और महिलाओं का समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। क्वेश्चन नंबर 101 श्री नीरज डांगे जी, माननीय नीरज डांगे जी। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री। सभा का प्रश्न का उत्तर सभापति पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 श्री संजय राउत जी, श्री संजय राउत जी। क्वेश्चन 102 मिनिस्टर, माननीय मंत्री। सभा पटल पे रख दिया गया। उत्तर सभा पटल पे 103 क्वेश्चन नंबर 13 श्री केसी राम मूर्ति। Under CREA, the ministry is giving 50% subsidy for agriculture perishables to be transported from northeast and 4 Himalayan states to other parts of the country. I would like to know from the Honorable Minister whether the ministry has any proposal for extending similar subsidy for transportation of agri-perishables and horticulture produce to other parts of the country. उड़ान योजना के अंतर्गत हम लोग ने ये कोशिश की है कि कार्गो क्षेत्र में भी एक वृद्धि हम लोग ला पाएं और इसके तहत हम लोग ने कहा है कि भारतीय जितने भी कैरियर्स हैं इसमें कुछ न कुछ हम लोग राशि भी दिलवाते हैं लोड के आधार पर, जहां 50% फ्रेट एग्री पेरिशेबल कमोडिटीज की हो। अभी इसकी शुरुआत हुई है, इस पर हम लोग और मंथन भी कर रहे हैं कि देश व्यापक इस योजना को हम लोग कैसे बनाएं, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटीज और हाई वैल्यू कमोडिटीज की बहुत जरूरत होती है कि जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हम लोग उन पेरिशेबल्स को पहुंचा पाएं। अभी शुरुआत कृषि योजना, उड़ान योजना की हम लोग ने की है और इसमें हम लोग आगे भी मंथन कर रहे हैं। So the main problem that the air cargo sector is facing is shortage of dedicated air freighters. Half of the world's air cargo is now transported in the bellies of passenger aircraft. Honorable Minister says in his reply that DGCA has given permission to modify passenger aircraft into freighters. So but it's going to be only a temporary arrangement, not a permanent solution. I would like to know from the Honorable Minister whether he has any proposal for giving tax holiday on capital gains for cargo aircraft leasing, tax exemption on aircraft lease, concession in parking fee, etc. to airlines to push air cargo and putting in action retired wide-body planes by converting them into all-cargo flights. अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कार्गो क्षेत्र भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विश्व भर में भी कार्गो क्षेत्र की वृद्धि, जैसे माननीय सांसद जी ने कहा, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये $270 बिलियन का जो व्यवसाय है आज, अगले 7 सालों में $380 बिलियन का व्यवसाय होगा।
question to the Honorable Minister is that Jharsuguda Airport in Odisha is under the UDAN scheme. Would the Honorable Minister consider upgrading Jharsuguda Airport under the UDAN scheme to also handle large container cargos in the coming days, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि भारत में अनेक एयरपोर्ट्स पे भी हम लोग कार्गो की फैसिलिटी भी दें और इसी लक्ष्य की पूर्ति करते हुए पिछले 1.5 सालों में हमने BCAS, हमारी सिक्योरिटी कंट्रोल और DGCA ने हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी कार्गो फैसिलिटी को हमने बढ़ाने की कोशिश की है। जो प्रस्ताव सांसद जी ने दिया है, इस पर भी अगर आके मुझसे मिलेंगे, जो भी संभव हो पाएगा हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। Deputy Chairman, thank you for asking supplementary to the Honorable Minister. In Hosur, there is a private airport. For that, government has already a scheme to use it for UDAN scheme. The Hosur, there's a Hosur in Tamil Nadu, that is border of Bangalore. There is the in Karnataka state, in the Bangalore airport is objecting not to have this airport to use for UDAN purpose. Whether you can come forward to settle this issue and see that Hosur, that airport can be used for the UDAN scheme. It's already in the process, is there. When we are going to implement it? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न कार्गो के साथ रिलेटेड है, तो ये प्रश्न इसके साथ संबंधित नहीं है, पर माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इसका जवाब मैं इनको जरूर भेजूंगा। Mr. Jafar Islam. Mr. Jafar Islam. सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कार्गो बिजनेस, एयर कार्गो बिजनेस तो बड़ा है, लेकिन क्या कार्गो बिजनेस का कोई एनालिसिस किया गया है कि टोटल पूल जो बिजनेस पूल है उसमें हमारे एयर इंडिया को कितना मिलता है और बाकी डोमेस्टिक एयरलाइंस को कितना मिलता है और जो फॉरेन एयरलाइंस जो ऑपरेट कर रही इंडिया से उनको कितना हिस्सा जाता है। इसलिए कि बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हमारी जो नेशनल एयरलाइंस है वो कितना बिजनेस इसमें पा पाती है, उसका कोई बेड़ा है? अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न सांसद महोदय ने पूछा है, इसका विवरण मैंने पिछले उत्तर में दिया था कि जो भारतीय कैरियर्स का शेयर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो बिजनेस में केवल 2% तक सीमित था। जो भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स दिए हैं, कार्गो हब्स नए बनाए हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से कार्गो की निर्यात की शुरुआत की है, हार्मोनाइज लिस्ट में कई प्रस्ताव रखे हैं। उसके आधार पर भारतीय कैरियर्स की शेयर पिछले 2 वर्ष में 2% से बढ़कर आज 19% हो चुकी है। इसी के साथ जो केवल 6 हम लोगों के फ्रेटर्स थे भारत में, सारे भारतीय कैरियर्स को मिलाकर, चाहे वो पैसेंजर कैरियर्स हो चाहे वो कार्गो कैरियर्स हो, उनको मिला के केवल 6 फ्रेटर से आज वो संख्या बढ़ के फ्लीट हम लोगों की 28 हो चुकी है। और जो हम लोगों का कार्गो बिजनेस का शेयर था इंटरनेशनल कार्गो में, उदाहरण के तौर पर 2019-20 में 1686 करोड़ का बिजनेस होता था, वो 1 साल के अंदर कोविड के माहौल में, अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में 2644 करोड़ हो गया। मतलब 60% की वृद्धि 1 साल में कोविड के महामारी में कार्गो बिजनेस, इंटरनेशनल कार्गो के बिजनेस में वृद्धि हुई है।